ایک ترکی کا واقعہ سناتا ہوں. 600 سال تک ترکی میں خلافت عثمانیہ 92% مسلمان, اور خلافت عثمانیہ ایسے چلی کہ آپ سب علماء ہیں, اگر پڑھیں گے تو ان کے خلفاء کے اندر اللہ کے نبی سے بڑی محبت تھی. بہت سے خلفاء کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ ان کے خوابوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں. جب خلیفہ ایسا ہوں گے تو علماء کیسے ہوں گے, وہاں کے عوام کیسی ہوگی, آپ اندازہ لگا لیجیے. 600 سال حکومت رہی اور خلافت تحریک چلی, یہ سب آپ نے سنا پڑھا, اور ترکی کے اندر خلافت ختم ہو گئی. لیکن اس کے ختم ہونے کے پیچھے جو بالکل اس کی اندر سے آپ اندازہ کریں گے تو ہم نے جو اسٹڈی کیا اس کے اعتبار سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے تبدیل ہو گیا. کیا یہ ہو سکتا ہے کہ کیا ہوا, کمال اتا ترک آیا, اس نے آتے ہی فوراً پورے ترکی کے اندر مسجدوں کو بین کر دیا, اذانیں بند کر دی. یہ جو حجاب کا کرناٹک کے مسئلہ چل رہا ہے بہت چھوٹا مسئلہ ہے, اسکارف پہننا, حجاب پہننا ممنوع قرار دے دیا گیا, اور اسلامی تشخص کو ختم کر دیا گیا, کانسٹیٹیوشن کو بدل دیا گیا. اگر کوئی خدا نہ خواستہ اسلامی تشخص کے ساتھ نظر آ جائے تو جیل اس کی سزا تھی. یہ صورتحال پیدا ہوئی کمال اتا ترک کے اقتدار پر آتے ہی. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ 92% مسلمان وہاں پر ہوں, ایک شخص آئے اور بندوق کی نوک پر یہ لاگو کر دے, ایسا نہیں ہوتا ہے. اس کے لیے زمین تیار کی گئی تھی. زمین تیار کیسے کی گئی تھی؟ سلطان عبد المجید کے زمانے میں کیسے تبدیلی آتی ہے آپ اس کو سمجھ لیجئے. سلطان عبد المجید آخری خلیفہ تھا. اس زمانے میں ایک پادری تھا جس کا نام سیرس ہیملن تھا. وہ آپ کو معلوم ہے کہ ترکی جو ہے اس کو قسطنطنیہ, حدیث میں قسطنطنیہ کہتے ہیں اور انگلش میں کانسٹینٹیپل کہتے ہیں. یہ بیزنٹائن ایمپائر کا مرکز تھا, عیسائیوں کا مرکز تھا. آیا صوفیہ جو ابھی کھولا وہ انہی کی تاریخ ہے. بیزنٹائن ایمپائر کے اندر سب سے بڑا چرچ تھا. سلطان محمد فاتح نے اس کو فتح کیا تھا. فتح بہت لوگ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. سلطان محمد فاتح نے باسفورس کینال کے پاس 2 قلعے بنائے تھے. ایک قلعے کا نام تھا رومالی حصار فورٹریس. اس کے بعد اس کی لمبی تفصیل ہے. قلعہ فتح ہوا, اس کے ذریعے ترکی کو فتح کیا گیا. 600 سال حکومت رہی. ہیملن کرسچن تھا, پادری تھا. اس کے دل کے اندر یہ بات تھی, دیوانے کی طرح گھومتا تھا کہ ہماری عیسائی جو ایمپرر تھا جو واپس چلا گیا ہے, کس طرح سے اس کو واپس لانا اور یہ اسلامی حکومت کو کس طرح سے ختم کرنا. اس کے لیے اس نے رات دن محنت کرتا رہا. اس زمانے میں نئی ایک انفارمیشن ٹیکنالوجی آئی تھی, ٹیلی گرام. آپ کی نوجوان نسل کو شاید ٹیلی گرام نہیں معلوم ہو. ہم لوگوں کے زمانے میں ٹیلی گرام ہوتا تھا. یعنی آپ کو ایک آفس میں جانا تھا, ایک میسج دیں گے تو ادھر سے وہ کھٹ 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 مارتے تھے, ادھر کھٹ 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 کچھ کوڈ ورڈز تھے, کوڈ آوازیں تھی. کھٹ کھٹ بولے تو بی, کھٹ بولے تو اے, کھٹ 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 بولیں گے, اس طرح کا کچھ تھا. تو اس کو فاسٹ میسج جانے کا سسٹم تھا ٹیلی گرام. اس وقت نیا یورپ میں انٹروڈیوس ہوا تھا. سیرس ہیملن نے پروفیسر سمتھ کے نام سے, اس کا ماہر تھا, ٹیلی گرام کا ماہر تھا, اس کو لے کر سلطان عبد المجید کے دربار میں گیا اور جا کر کہا کہ سر, میں آپ کے ملک کے لیے ایک نئی ٹیکنالوجی لایا ہوں کہ آپ منٹوں کے اندر, سیکنڈوں کے اندر اپنا میسج ہزاروں کلومیٹر دور پہنچا سکتے ہیں. سلطان عبد المجید نے کہا کہ بھئی کیسے, ڈیمو دو. تو ڈیمو کے لیے ایک محل سے دوسرے محل تک وائر کھینچی گئی اور سلطان عبد المجید نے ڈیمو کے دن اپنے فوج کے سارے لوگوں کو, شیخ الاسلام کو, سب کو جمع کیا اور ایک خفیہ میسج لکھا, اپنے ایک وزیر کو دیا اور کہا کہ یہ میسج لے جا کر دوسرے محل میں دو, وہاں سے یہ میسج کو کیا کرنے دو, پاس کرنے دو. تو ادھر
मैसेज भेजा गया, मैसेज को वहां से फॉरवर्ड किया गया टेलीग्राम के थ्रू। प्रोफेसर समित ने उसको लिखकर सुल्तान अब्दुल मजीद को दिखा दिया। सुल्तान अब्दुल मजीद देखकर एक्साइटेड हो गया कि इतना जबरदस्त यही मैसेज मैंने भेजा था और इतनी जल्दी ये वापस आ गया। तो एकदम जोश में आ गया सुल्तान अब्दुल मजीद, कहा कि इसको मैं पूरे मेरे मुल्क के अंदर मैं करूंगा। लेकिन जो बात मैं कहने के लिए कह रहा हूं आप सुन लो, लेकिन वो इतना एक्साइटेड हुआ कि हैमलिन से कहा कि ये मुझे बताओ, आज मैं तुमको कुछ नवाजना चाहता हूं, तुम आज जो पूछोगे वो मैं तुमको नवाज दूंगा, जो कहोगे वो दे दूंगा। मैं कभी कभी सोचता हूं कि मैं अमेरिका जाता डॉक्टर साहब को लेकर, मेडिकल का कोई नया कोई टेक्नोलॉजी है ओपन किए होते मैं और डॉक्टर साहब, और जो बाइडेन के सामने जाकर ये डेमो दे देते और वो एक्साइटेड हो जाता और वो कहता मुझे और डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब जो पूछोगे दे दूंगा। हम क्या पूछते, मुझे आप बैठकर इस क्वेश्चन को देखो कि हम क्या पूछते। एक बड़ा बंगला बहुत ज्यादा है तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, क्या पूछते हम। कौमों को बनाने, कौमों को तरक्की देने वाले, चेंज करने वाले, तारीख को बदलने वालों की सोच अलग होती है। हैमलिन ने सुल्तान अब्दुल मजीद से कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए मेरे वास्ते, बस मुझे एक दरखास्त है, आप पूरी कर दें। कहा कि क्या दरखास्त है बताओ। उस वक्त तक कुस्तुनतुनिया के अंदर, तुर्की के अंदर किसी भी ईसाइयों को अपना स्कूल कायम करने की इजाजत नहीं थी। उसने कहा कि हम क्रिश्चियन माइनॉरिटीज को यहां पर कोई स्कूल कायम करने की इजाजत नहीं है, बस आप हमको एक इजाजत दे दीजिए। कहा कि इतना ही, और उसने फौरन परवाना लिखकर दिया कि आप स्कूल कायम कर सकते हैं। सुल्तान अब्दुल मजीद, हैमलिन जो है वो पादरी था, फकीर किस्म का आदमी था, दाई मिशनरी वाला आदमी था, पैसा नहीं था उसके पास। ये तो मिल गया था परवाना, अब स्कूल बनाना है तो जमीन खरीदना है और उसके ऊपर बिल्डिंग बनाना है और स्कूल चलाना है, कहां से लाएंगे। उसने उसी जमाने में अमेरिका में एक शख्स जिसका नाम था रॉबर्ट, वो नया नया जो है ईसाइयत कबूल किया था, उसको खत लिखा रॉबर्ट को कुस्तुनतुनिया के कुतुबखाने के अंदर। मैं ये खत निकालने के लिए तकरीबन 1.5 साल मेहनत किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो खत मुझे मिला। उसने रॉबर्ट को खत लिखा, उसका खुलासा मैं बता देता हूं आपको कि देखो, सुल्तान मोहम्मद सेकेंड ने बिजेंटाइन एम्पायर को रुमाली हिसार फोर्ट्रेस बनाकर फतेह कर लिया। आज इस्लामी हुकूमत यहां पर मौजूद है। ये टाइम आ गया है कि मैं उसी किले के बगल में एक इंस्टीट्यूशन बनाकर इस इस्लामी हुकूमत को खत्म करना चाहता हूं। तुम्हें इस वक्त तुम्हारी दौलत तुम्हारे पास है, तुम्हें एक स्कूल बनाने का है निजाम बना दो। जब ये खत उसके पास गया तो वो बहुत समझदार आदमी था, उसने फौरन अपनी दौलत का एक बड़ा हिस्सा भेजा। यहां से उठकर जाकर आप नेट पर डालिए रॉबर्ट कॉलेज के नाम से, रॉबर्ट स्कूल, रॉबर्ट कॉलेज, तुर्की में आज भी मौजूद है। ये रुमाली हिसार फोर्ट्रेस के बगल में है आज भी। स्कूल शुरू हो गया। स्कूल शुरू होने के बाद हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी का स्कूल बनाया गया था। बच्चे पढ़ने के लिए पहले ईसाइयों के आए, मुसलमान बच्चों के आने की क्या नहीं थी, वो नहीं थी। मुसलमान बच्चे दूसरे स्कूलों को जाते थे। साल 2 साल के अंदर इसकी क्वालिटी इतनी हाई थी कि अब मुसलमान पेरेंट्स ने मुतालबा किया हुकूमत से कि हमको भी उसमें पढ़ने की क्या दी जाए, इजाजत दी जाए। इजाजत दे दी गई। अब वहां पढ़ाई शुरू हुई। उसके ब्रांचेस बनना शुरू हुए। रॉबर्ट कॉलेज के गर्ल्स कॉलेज बन गया, गर्ल्स स्कूल बन गया, ये सब बनना शुरू हुए। और
पुराना एजुकेशन सिस्टम था तुर्की का, और ये एक नया एजुकेशन सिस्टम पूरे जोश के साथ आया था। मुसलमान पेरेंट्स अपने बच्चों को वहां दाखिल कराने लगे। दाखिला कराने वालों में उलमा भी थे, दीनदार भी थे, नेक भी थे, सब उसमें दाखिल करा रहे थे। बच्चों का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा बन रहा था। वहां पर किसी ने तवज्जो ये नहीं की कि वहां पर सिर्फ सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जा रहा था, बल्कि बच्चों की मेंटालिटी को भी चेंज किया जा रहा था। बच्चों की मेंटालिटी को कैसे चेंज किया जा रहा था? बच्चा पढ़ते पढ़ते रॉबर्ट कॉलेज से बाहर आए तो उसकी मेंटालिटी ये बन जाती थी। देखिए, मेंटालिटी 13 साल के अंदर बन जाती है। 2 उम्रें हैं बच्चों के बनने की। एक उम्र है पैदाइश से लेकर 13 साल तक, दूसरा उसका फेज शुरू होता है 13 साल से 19 साल तक। ये 2 फेस में जो कुछ बच्चा बनना है वो बन जाता है। 20 साल के बाद जो बन गया है उस पर काम करता है। तो मेंटेलिटी ये बन रही थी कि इस दुनिया में अगर हमको तरक्की करना है, आगे बढ़ना है, तो हम यूरोप के कल्चर को इख्तियार करना है, हम यूरोप की तरफ आना है। ये लोग जो दीन के नाम से चल रहे हैं, ये बैकवर्ड है, ना इनको कुछ ठीक से जबान आती है, ये दुनिया को नहीं जानते। ये तसव्वुर वो बच्चे को, पढ़ने वाले बच्चे के अंदर पैदा होने लगा, और ऐसे लाखों बच्चे निकल गए। 2022 तक की हालत बता रहा हूं आपको। कुछ बाद में यहां के जो फारिगीन हैं, उन फारिगीन ने सब मिलकर एक तंजीम कायम कर दी। उस तंजीम का नाम था हरकत-उश-शबाब तुर्की, यंग तुर्क मूवमेंट के नाम से। उन्होंने एक पूरी तंजीम कायम कर दी और यह तहरीक चलाई कि तुर्की को लिबरल करो, आजादी दिलाओ, ये दीन के नाम से। और जो लोग इस तुर्की को बैकवर्डनेस की तरफ लेकर जा रहे हैं, इसको आगे आने के लिए तुर्की के लिए नौजवान काम करना है। अब इसकी तहरीक चलने लगी। यही तहरीक का हिस्सा थे कमाल अतातुर्क, यही तहरीक के स्टूडेंट थे ये लोग सब, और ये सब मुसलमानों के बच्चे थे। इसमें से आप पढ़ेंगे इन लोगों को, बहुत से लोग इनके दादा बड़े आलिम थे, माँ बाप खुद कमाल अतातुर्क की दादी बड़ी नेक परहेजगार, उनकी वालिदा बहुत नमाजी परहेजगार, वालिद ने ले जाकर रॉबर्ट कॉलेज मिलिट्री स्कूल के अंदर दाखिल किया था। तो इन लोगों का जहन बन गया, और जब धीरे धीरे मुल्क के अंदर मुसलमानों ही के बच्चों का जहन बना, तो कुछ सियासी, बाद में सियासत आती है और थोड़ा सा बहाना चाहिए। आलमी जंग हुई, उसके अंदर तुर्की को शिकस्त हुई, और आप जानते हैं कि कमाल अतातुर्क क्या बन गए, सदर बन गए। और सदर बनते ही सारे इस्लामी चीजों से को बाइकाट, बैन कर दिया। 30 साल तक जहां 92% मुसलमान थे, यहां तो 14% है, हम 15% है। नहीं मौलाना, वो थोड़ा सा गड़बड़ बोल रहे लोग, चलो 20% है आप। 92% मुसलमान जहां थे, वहां पर 30 साल तक अजान बैन रही। 92% मुसलमान जहां थे, सारे मदरसे एक दिन में बंद किए गए। 92% मुसलमान जहां थे, वहां हिजाब ओढ़ कर जाना ममनू था। 92% मुसलमान जहां थे, वहां अल्लाह का नाम लेना जुर्म था। ये 30 साल गुजरे। अब मैं आ जाता हूं हल पर। देखता हूं टाइम कितना बाकी रह गया है अभी 10 मिनट। अच्छा, उधर दे रहे हैं तो वो, अच्छा उस पे चलना है मुझको, ठीक, बहुत अच्छा। तो प्रैक्टिस के लिए ठीक है। तो अब क्या क्या किया, देखो आपको मैं बताता हूं। हर माशरे में यह होता है, जब यह हालात आई तो मुसलमान क्या करेंगे, जो दीनदार तबका था वो क्या करेगा। हमारे पास साफ साफ बात यह है कि 2 ऑप्शन होते हैं ऐसे मौके पर। एक ऑप्शन यह है कि दीन के बगैर हम दुनिया में जिएंगे कैसे। जो सामने वाले हैं उनसे टकरा जाओ, और आदमी जान देने के लिए क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है।
जिएंगे तो इस्लाम के साथ जिएंगे, वरना अपनी जानें कुर्बान कर देंगे। एक ऑप्शन ये होता है। दूसरा ऑप्शन ये है कि भाई आप कहां लड़ेंगे, ये सब कुछ ये हो गया, ईमान किसमें रख लो, दिल में रख लो, हालात से क्या कर लो, कॉम्प्रोमाइज कर लो। यही दो ऑप्शन होते हैं। हमको तीसरा ऑप्शन मालूम नहीं है। ये दोनों ऑप्शंस तुर्की के अंदर आजमाए गए। एक बड़ी तादाद जो है कॉम्प्रोमाइज कर लिया और अपने ईमान को धीरे धीरे क्या कर दिया, छोड़ दिया। दूसरा ऑप्शन नौजवानों का, जोशीले जज्बात वालों का, सही ईमानी अपनी ताकत दिखाने का, कि उन्होंने अपने आप को झोंक दिया और हुकूमत के सामने डट गए। और जो लोग डट गए थे उनके साथ यह हुआ कि पूरी पूरी बस्तियों को कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया गया था। और कुछ दिनों के बाद वो तहरीकें कमजोर पड़ गई। एक तहरीक थी जिसकी तरफ हमारा जहन नहीं जाता। हजरत मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह बार बार इसकी तरफ तवज्जो दिलाते रहे उम्मत को। वो तहरीक थी हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह की। हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी के सिलसिले के बुजुर्गान दीन तुर्की के अंदर मौजूद थे। खालिद नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह, इनके सिलसिले के लोग, बदीउज़्ज़मान नूरूसी रहमतुल्लाह अलैह, सुलेमान तहनान रहमतुल्लाह अलैह, इस तरह के एक बड़ी तादाद नक्शबंदी बुजुर्गों की थी। वो लोग आपस में बैठे, क्या करना है। उन्होंने कहा कि भाई देखो, पहले अपनी गलती क्या हुई है वो देख लो। गलती यह हुई है कि हमारी ही नस्ल के बच्चों को इन लोगों ने स्कूल के नाम से उनके जहन को तब्दील कर दिया, और जिसकी वजह से ये बच्चे मुखालिफ हो गए इस्लाम के। और उस वक्त जो रोल हमको अदा करना था, हमने वो रोल नहीं अदा किया। ये जो पाबंदी लगा रहे हैं, ये ना यहूदी है ना ईसाई, ये हमारे बच्चे हैं जिनका जहन तालीम के जरिए क्या कर दिया गया, तब्दील कर दिया गया। अब हमें करना क्या है, जब हमारे बच्चों के जहन को तब्दील करके इल्हाद लाया जा सकता है, तो हमें भी लॉन्ग टर्म काम शुरू करना है। अभी इनके बच्चों के जहन को तब्दील करने की मेहनत शुरू करो। अब उसका काम यह हुआ, 4-5 तरीके से काम शुरू हुआ। शुरू के तकरीबन 30 साल यह हालत थी कि खुफिया होम स्कूल चलाना शुरू किया। होम स्कूल का मतलब क्या है, बिल्कुल इस्लाम पढ़ाने की इजाजत नहीं थी। उलमा एक घर में जाते थे, उनके बच्चों को बुलाते थे, जिसके बारे में मालूम हो कि ये दीन को पसंद करता है, और खुफिया तौर पर दरवाजा लगाकर वहां उसको दीन सिखाया जाता था। उसके बाद वो बच्चों को टॉफी वगैरह देकर बगल वाले बच्चों को क्या करते थे, उसी घर में बुलाते थे, फिर वहां पढ़ा दिया, फिर आगे बढ़ गए। सुबह से शाम तक ये काम रहता था। अगर किसी सेक्युलर जहन के बाप को मालूम हो जाए कि मेरे बच्चे को इन्होंने बुलाकर ये इस तरह से पढ़ाया और उसने केस कर दिया, तो फौरन गिरफ्तारी हो जाती थी। इस तरह से करते 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 आपको हम बता रहे हैं 30 साल गुजरे। 30 साल में सिर्फ खुफिया होम स्कूल के जरिए दोबारा जो सेक्युलर दिमाग के लोग थे, उनके बच्चों के जहन को तब्दील कर लिया गया। 1950 तक तुर्की के अंदर वन पार्टी की हुकूमत थी। 1950 के में यह बात चली कि तुर्की के अंदर यह होना चाहिए कि मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम लाना चाहिए। तो इलेक्शन का निजाम आया। तो एक शख्स था अदनान मंदरीस, उसने अपनी एक पार्टी बनाई। अब वो इलेक्शन को खड़ा हुआ। उलमा ने खुफिया तौर पर उससे जाकर मुलाकात की, कहा कि देखो हमारा ये वोट बैंक है, हम तुमको वोट दे देंगे, हम तुमको वोट दे देंगे, जिता देंगे। शर्त यह है कि हमारी एक शर्त मान लो तुम। उसने पूछा क्या शर्त है। इन उलमा ने अदनान मंदरीस के सामने वही शर्त रखी जो हैमलिन ने सुल्तान अब्दुल मजीद के सामने रखी थी। कहा कि कुछ नहीं, जैसे स्कूल चल रहे वो चलने दो, सिर्फ हमको को इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम चलाने की अपनी स्कूल्स के अंदर इजाजत दे दो।
जिसके अंदर हम बच्चों को कलमा वगैरह सब सिखा लें, ये सिखा लें। अदनान मंदरिस ने कहा कि वोट दे दो, जीत दे जाऊंगा तो कर दूंगा। जीत गया वो, आते ही उसने इजाजत दे दी। अब इजाजत देने के बाद क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। इन बुजुर्गों ने, जिनका जहन बन चुका था, जो अच्छे मालदार और पैसे वाले लोग थे, उनको जमा किया। कहा कि अपना इन्वेस्टमेंट तुम फला फला बिजनेस में कर रहे हो, उसको निकालो, स्कूल्स पर अपना इन्वेस्टमेंट करो और उससे अच्छी फीस लो, और उससे तुमको जो इनकम आएगी वो इनकम रख लो, लेकिन सिस्टम जो हम देंगे वो चला दो। तो बहुत से लोग, मालदार लोग आए। सिर्फ 12 साल के अंदर 6000 स्कूल शुरू किए गए। बदिउज्जमान नूरूसी, सुलेमान तहनान, सुलेमानची मूवमेंट, ये सब चला। अब मैं आपको बताता हूं, आज आप देख रहे हैं कि तुर्की दोबारा किसकी तरफ आ रहा है? इस्लाम की तरफ आ रहा है। आप तैयब अर्दगान, इनको सब देख रहे हैं। ये तैयब अर्दगान, वो जो खिरत वगैरह करता है ना, वो इन्हीं स्कूलों का पढ़ा हुआ परवरदा है।